Hello, everyone. Welcome back to Drama Log. Today's episode is about a new drama that's just aired on Hum TV. This is Sunny from Drama Log, and with me I have Sana from Drama Log and Faraz from Drama Pakistani. How's it going, guys? Hi everyone, क्या हाल चाल है सबका ठीक ठाक. We are going to talk about नीलो नील today. और मेरे पास तो बहुत कुछ है इसके बारे में बात करने के लिए, कास्ट के बारे में, एक्टर्स के बारे में. सना ने आई थिंक शायद नहीं देखा, सो सना इज गोइंग टू बी लाइक दोज लिसनर्स जिनको हम एजुकेट करेंगे इस ड्रामे के बारे में. तो सना, आर यू देयर? Hey, Assalamualaikum, I'm here. Yes. तो सना, आप ये बताएं, सबसे पहले तो ऐसे ही पूछते हैं, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग क्या है आपकी इस ड्रामे के बारे में? Tan man means body and your heart. Neelo Neel. Neelo वो तो Neel गाना means है. blue. ये अच्छा हाँ, गाना है ये गाना है गाना ये है. हाँ, अच्छा ये गाना है. ये कौन सा गाना है ये मेरा तन मन नीलो नील, हैं मैं तेरे पीछे What does that रह mean? गई. वो पंजाबी गाना है, मुझे नहीं पता. वो गाना है Neelo ना, Neel मतलब तेरे कि blue हो पीछे गया रह मेरा गई, हाय It's दिल blue जान, like ये like गाना like है. my heart and my body is blue. वो गाने के ऊपर है भैया. इतनी पंजाबी तो मुझे नहीं आती. मैंने आंदी पंजाबी, पर एनी नहीं आंदी, कट आंदी ने. Yeah, you're का wounded. That's पंजाबी. why you're Nilo Nil. नीलो नील. उसका तन मन नीलो नील हो गया मोहब्बत में, शायद ये चक्कर. नीलो नील मतलब होता है जब कोई ब्रूस पड़ जाता है Yeah, that's what it is. Yeah. ड्राम भाई, तो हमारे गानों में ऐसे तो होता है कि ब्रूस्ड हो गए ओके शिद्दत दिखाने के लिए. अच्छा I mean I like Seher Khan ओके. so that's all I know. ओके. So Sunny, would you like to give an overview? Yeah, sure. So this is a new drama on Hum TV. I think it's the last of the trilogies that Hum is presenting nowadays. We saw two already. One was Manjogi, the other was Nadan, and this is the last one called Tan Man Nilo Neel. As I mentioned, it's a Hum TV production. It's written by Mustafa Afridi and the director is Saifi Hassan. So very, very powerful team there, and we're hoping it's going to have a powerful message in the drama as well. So the leads are Shuja Asad and Seher Khan, like Sana mentioned, and also it's an ensemble cast which is very, very reputed. So we see Nadia Afghan, we see Samia Mumtaz, and a lot of others as well whom we absolutely love. So the story opens as it looks like it's a story about a dancer, young dancer, and he has got a dance troupe that performs in colleges and in other private events, and that's Shuja Asad's group. And then we have young TikToker or a social media personality. Her name is Seher Khan. She's dreaming to be a social media person, and apparently she had a channel before which was shut down because of people reported issues with them. So she's restarting her adventure with social media again. And so the characters were so beautiful. Like the two youngsters, they had so much of passion in their eyes, and they had so much of, they're so lively, the boy and the girl, that they immediately captivate you, right, with their story. And then you have their parents, as well as there is a local goon, I guess. I don't know if he's a political personality or a local goon. इज अ लोकल गुण, बट वो जो जाहिर है वो भी बड़े जालिम एक्टर हैं, बहुत खतरनाक एक्टर. और मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि यार, ये जफर मिराज नाम है ना इनका, आप Right. वॉच आउट फॉर हिम. आपने इस तरह का खतरनाक विलन, आप काशिफ हुसैन की एक्टिंग भूल जाएंगे, क्योंकि ये बहुत खतरनाक. खैर, काशिफ हुसैन तो बच्चे हैं इनके आगे, ये तो बहुत जालिम किस्म के एक्टर हैं, बहुत पुराने एक्टर हैं. I अच्छा. actually really like him. I didn't know his name, to be honest. That's my जफर bad. मिराज. For Miraj, I saw him in जफर. Breaking News, and he was so good in Oh, Breaking he is News. really Like good. He is he really good. he had a comical side, but at the same time, he was very intimidating with his looks and his performance. And over here, जफर मिराज नाम नहीं है इनका, सॉरी. मैं नाम मिराज नाम है आखिरी, लास्ट नेम मिराज है. फर्स्ट नेम मैं अभी बताता हूँ आपको, लेकिन यहाँ वो जो गून बने हुए. कैरी ऑन. yeah, and then we see someone called Kami. He's the cousin. He's the cousin of. So Sair's name is Rabi, and Shuja's name is Sonu. And Rabi's cousin is Kami. He is apparently
an agitator. What that means is he's given money by these goons, and they're asked to go and agitate against the cops or against social establishments, and they get paid for that. So he's a very, smart guy, in the sense that he knows he's money oriented. He knows how to extract money from in his dealings, etc. And so he has we see an interaction. We see that he was hired by this local goon to cause an agitation, and we see that how there was some money dealing going on where he kind of like triumphed in the beginning, and then he ended up getting punished by this goon. And on the other hand, I will let Faraz discuss this one because this is a very sensitive, male topic. The fate of one of Sonu's teammate. So over to you, Faraz. अच्छा, वाकई में खैर टॉपिक तो काफी सेंसिटिव है और ये चीजें हम अपने माशरे में देखते रहते हैं, खास तौर पर मतलब इतना ज्यादा हमारे सोसाइटी में ये चीज आम हो गई है कि हमने कुछ इसको मजाक भी बना लिया है हमने, और इसको हमने जो है ना वो एसोसिएट भी कर दिया है सर्टन जबानों के साथ कि अगर आप पठानों के एरिया में जाएं तो guys need to be careful from the Pathans, चाहे आप छोटे हो या बड़े हो. सो एक ये मैसेज था. खैर उसके बारे में मतलब बहुत इंटेंस ये बात हो जाएगी, हम करते हैं उसके बारे में बात. लेकिन ओवरऑल अगर हम ड्रामे के बारे में बात करें ऑन अ लाइटर नोट, सलीम मिराज नाम है उनका, जो कैसर है. और कैसर जो है वो मतलब ही समवन हु डजंट टेक नो फॉर एन आंसर, जो जिस तरह की वो अथॉरिटी से बात करते हैं. लेकिन मुझे जो इस ड्रामे में जो चीजें जिन्होंने हंसाया और जिन्होंने मजा कराया इस ड्रामे में, सना आपको ये देखना चाहिए. आप देखेंगे, आई एम श्योर आप देखेंगे कल परसों, एंड यू विल एंजॉय इट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि यार उसमें ना वो वही बातें कर रहे हैं जो हम लोग कल परसों कर रहे थे. सोशल मीडिया, मैट्रिक्स, हमारा चैनल ऊपर जाएगा, तो वो जिस तरह से वो बात कर रही होती है ना, मेरे 1.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पर, और जो है ना मुखालिफ चैनल वालों ने जो है ना मेरे यूट्यूब को जो है ना रिपोर्ट कर दिया, कॉपीराइट स्ट्राइक लग गई. दीज स्मॉल टर्म्स स्ट्राइक. और जो लोग हमारी बात सुन रहे हैं, हमको बताना चाहते हैं कि हम लोग जब अपना कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं तो ये बहुत सी चीजों का हम ध्यान रखते हैं. और उसके अंदर जो है ना वो एक बड़ा क्यूट सी सीन होता है कि वो एक तो वो जिस चैनल को रिप्रेजेंट कर रही है उसके माइक पे लिखा हुआ RIP, रेस्ट इन पीस. व्हाट काइंड ऑफ चैनल इज दैट? RIP, रेस्ट इन पीस, ये चैनल है उसका. और उसमें वो इंटरव्यू ले रही है उसका सोनू डेंजर डांसर का. तो उसको उम्मीद है कि यार शायद दीज स्मॉल थिंग्स, ये छोटी छोटी चीजें ये हमारे लिए कितनी मायने रखती है कि वो सुबह उठती है और देखती है कि उसने जो वीडियो यूट्यूबर लड़की ने वीडियो बनाई होती है सोनू डेंजर की कि वो अपने चैनल पे डाल सके, उसको 3 कमेंट्स मिले और उसमें वो बहुत खुश होती है. तो गाइस जो आप लोग सुन रहे हैं, आप हमारी पॉडबीन पे, एप्पल पॉडकास्ट पे और आप हमारे स्पॉटिफाई पे कमेंट जरूर किया करें. हमें कमेंट्स चाहिए. सना बहुत परेशान रहती है कि कोई कमेंट नहीं करता. No, Sunny wants feedback. हमें चाहिए कमेंट्स, आप हमें कमेंट्स दीजिए. No, Faraz is a genius. ये हमारे लिए बहुत मैटर करता है. मैं जब वो ड्रामा देख रहा था मुझे फील हुआ अंदर तक, यहाँ लगी आके बात की यार, दो कितनी यार मैं तो कल इतना I was like crying yesterday. बताओ. नहीं सना के आंसू बहुत मैंने कहा कमेंट्स करें, और इसके बाद भी कोई कमेंट नहीं करता ना, दुर्फिटे. तो खैर बहरहाल, अच्छा उसमें एक बड़े मजे का चीज आप लोगों को बताऊंगा. एक तो ये लाहौर बेस्ड ड्रामा बनाया जैसे लाहौर में, तो एक बड़े मजे की चीज उसके अंदर है. आई एजुकेट यू गाइज इफ यू गाइज डोंट नो अबाउट इट, तो जस्ट इग्नोर माय नाइविटी की मुझे नहीं पता. लेकिन आप लोग देखेंगे जैसे हम कराची के डायलेक्ट के बारे में अक्सर बात करते हैं, उर्दू में बात करते हैं, कुछ खास अल्फाज, करी जो कि एक लफ्ज नहीं है उर्दू का लेकिन हम कराची वाले बोलते हैं. फिर हैरानगी, ये भी कोई लफ्ज नहीं है उर्दू का लेकिन हम कराची वालों की इजाद है. इसी तरह हैरान होना होता है. तो इसी तरह लाहौर के डायलेक्ट में ना एक बड़े मजे की चीज होती है, एंड दिस इज समथिंग दैट यू वुड एंजॉय सेइंग, मे बी यू गाइस कैन से इट. ये लोग ना आर, जहां आर लगना होता है ना, रे लगना होता है, उसकी जगह अड़ई लगा देते हैं.
Ah, okay. जहाँ रे लगना होता है वहाँ आर लगा Oh, देते you know what? जब भी stand up girl में ऐसे था, and I'm like, ये क्या बोल रहे हैं? हैं। ये लाहौरियों की पहचान है ये। I was Oh. about to ask you, why was she talking like that on the channel? लाहौरी, You know? that's a typical Lahori thing. Minaɗे, you know, they say Minaɗे Pakistan. Acha, you know, that's why, remember in Sunny, in Stand Up Girl, we were like, what kind of accent is this? What is this? Why are they talking like Yeah, this? I could not लाहौरी understand in the करते beginning. I, Ray को Ray बोलते हैं, like just रड़े like, रड़े what should I say? फराज को बोले फड़ाज। फराज, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, ये कर रहे हो, ये तो कॉमन लफ्ज है ना, कोई भी बात करेंगे तो आप प्रैक्टिस भी कर सकें तो आप कर सकते हैं आराम से। आयशा मुझे तंग नहीं करो, आयशा तंग नहीं करो, है ना? ये Yeah. सारे लोग हम पे हमारे कमेंट्स करें जितने भी लाइक सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। Tabhi Sonu guy was like, what are you doing it? Why are you rolling your R's like that? वो कह रहे तुम ये कैरेक्टर क्यों प्ले कर रही हो, वो लाहौरी गर्ल का कैरेक्टर प्ले कर रही है। Sure, that तो explains. ये दैट्स अ फनी पार्ट, दैट्स द फनी पार्ट। बाकी अगर इस ड्रामे के कैरेक्टर्स के बारे में बात करें यार, एक्टर्स एक से एक कमाल चुन के लिए इन्होंने यार। Oh, yes. कि you have Samia Mumtaz, you have Nadia Afghan, you have Numan Masood, you have the same guy, मुझे मेरी शर्म आ रही कि मैं उनका नाम अब तक याद नहीं कर पा रहा, जो जर्द पत्तों का बदमिन मीनू के फादर का रोल जिन्होंने किया था। Yeah, he's everywhere now, right? He's And they're everywhere. really liking him everywhere. हाँ, वो जो है वो सहर जो लड़की है उसके चचा है या ताया है, ताया है, हाँ। हाँ ताया है वो। तो वो है, फिर लैला जुबैरी हैं, एक से फिर आप सबसे बेहतरीन तो ये सलीम मिराज साहब हैं। अरे तो इतनी मुझे ये जो जादू चला रही हैं सुल्ताना सिद्दीकी साहबा और इतनी एंसेम्बल कास्ट को लेके आ रही हैं ड्रामे में, वो इस तरह के ड्रामे और बनाने चाहिए। मे बी दीज गाइज आर वर्किंग बिकॉज इट्स अ शॉर्ट वर्जन और मॉब लिंचिंग पर ही है, ये तो तेज रहने वाला है कंफर्म 100%। और बड़ा फन मजेदार ड्रामा है, ओवरऑल बहुत मजेदार ड्रामा है। लेकिन if now we talk about the serious part, we were not expecting that कि जो not at all, yeah. हाँ कि जो उस तरह का आखिर में इन्होंने एक वो सलीम मिराज जो है कैसर उनकी जो पर्सनालिटी दिखाई और उस लड़के मतलब यू गाइस सी इट। अभी थोड़ी देर पहले हम कर्जे जहां के बारे में बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि फैमिली की इज्जत बचाने के लिए वो चुप रहना, उसकी बड़ी बहन उसको कह रही है कि चुप रहो, बट यू गाइस सी दैट पॉइंट कि दैट गाय हैज गॉन थ्रू समथिंग horrible like that, and he's not sharing it with his male friends. Right, he just said I got beaten. I got beaten, and obviously हमें समझ So he में आ was, रहा है कि so he's been molested by his uncle? yes, Okay. Not Like, uncle, the goon। the goon, yeah. oh, तो अच्छा। कहानी कुछ इस तरह से प्रोग्रेस होती है ना कि ये लोग एक डांसर ग्रुप है, सोनू डेंजर और उसका दोस्त, और ये पूरा ग्रुप है एक, और जो लड़की है सहर वो यूट्यूबर है, वो यूट्यूब के ऊपर जाना चाहती है। तो ये सोनू डेंजर ग्रुप क्या करते हैं, सोनू डेंजर के वालदा समिया मुमताज, वो भी एक अच्छी पुरानी डांसर है। अभी ये इंट्रोडक्शन है, और सोनू डेंजर का ग्रुप एक जगह परफॉर्म करने जाते हैं जहां पे ये पॉलिटिकल जो होता है कैसर सलीम मिराज एक फंक्शन करा रहे होते हैं। तो ये उससे पैसे मांगते हैं एडवांस में कि यार आप हमें पैसे दे दें एडवांस में, क्योंकि हमें कोई भी पार्टी जो है ना हमें जो है ना पैसे नहीं पूरे देती। आपने जैसे फर्ज करें हमारी पेमेंट है 20,000, तो आपने 10,000 अभी दे दिए, तो बाकी के पैसे भी हमें डांस से पहले दे दें आप, वरना आप तो पैसे नहीं देंगे हमें। तो जो सलीम मिराज होता है, कैसर नाम है उसका, जो गून होता है, वो कहता है कि बाकी लोगों को गनमैन को बुला लेता है और बाकी उस सबको कहता है कि तुम लोग जाओ डांस करो, और उसको वो अकेले में ले जाता है। सो वी सी द काइंड ऑफ थिंग्स दैट ही इज डूइंग, और फिर वो एंड में उसको पैसे फेंकता है उसके मुंह पे, एंड इन दैट वाज सच, मतलब ऐसा सीन था। Oh, so he basically raped him. Yes, he did. Okay. एंड सोसाइटी का एक डिलेमा ये दिखाया गया क्योंकि वो लड़का है, तो ही इज नॉट सेइंग इट एंड ही इज हैविंग दिस फसाद के कुछ नहीं हुआ। ही इज नॉट शेयरिंग इट विद एनीवन, he himself is not sharing it with anyone, क्योंकि maybe some way or the other this is a much bigger taboo in guys if they share it with anyone। Yeah. कि मेरे साथ ये हुआ, और ये मैं आपको बताऊं ये होता है, ये मतलब एक हम लोग जब हम छोटे होते थे तो हमारे मोहल्ले के ही बहुत सारे
बुजुर्ग होते थे जो चेहरे पे तो बड़े बुजुर्ग बने हुए। आई डोंट नो इफ दिस वुड कम एज अ सरप्राइज टू No, it doesn't. गाइस, है ना? यहाँ जैसे पे यहाँ पे एक यहाँ पे feast करते थे यहाँ पे. We've seen it. हाँ, तो ये होता है, लड़कों के साथ भी होता है, बल्कि Of course. ये चीज, हाँ, मुझे ये चीज समझ नहीं आती कि हम हर चीज को ना मजाक में ले जाते हैं. सो दिस ड्रामा इज मोर लाइक अ No, सीरियस अटेम्प्ट एट yeah, सच no, yeah, थिंग्स. exactly. Yeah, there's no mazak about हाँ, being molested, being abused. यू नो, जैसे अनफॉर्चुनेटली वो एक मजाक बना हुआ लड़कों में कि हमजा हमजा जो है वो बच्चा है, मतलब इट्स अ मीम के कारी साहब है वो उसके साथ मोलेस्टेशन करते हैं, एंड इट्स अ फन What? काइंड ऑफ थिंग. Oh my हाँ, ये God. Oh my God, that's horrible. हाँ, दैट्स हॉरिबल. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो मजहबी लोग हैं, खैर टॉपिक बहुत कहीं और चला जाएगा, बट दिस डज हैपन इन आवर But सोसाइटी. yeah, मजहबी बहुत करते हैं because you know यहाँ पे भी करते हैं because you know the जो priest के यहाँ पे पूरा scandal जो था at the church. हाँ, It was revealed here, so it happens everywhere, not just you know one country. It's everywhere. हाँ, I mean, it तो started with ये like with Lut alayhi salam, so obviously like it's been going on for centuries. So ये चीज interestingly, होती है. like Go ahead. interestingly, the same guy, right? The same goon. He does this thing with a dancer, and when it came to the agitator, who also had a similar uh, interaction with him, right? He also demanded money, and he actually coerced money out of him, right? Wahan pe he took a different approach. Like the same goon. When it came to the agitator, he publicly humiliated him through the cops. Do you see that part? Like, you know, Yes, I see that. because he's not हमें a उसकी dancer, पर्सनालिटी के रुख दिखाए गए हैं. right? Because he's not a dancer, he's not an artistic type. उसके Correct. साथ वो नहीं किया, Correct. उसके साथ मर्दाना वाला humiliation किया. तो so that दो is रीजंस हो सकते हैं इसके. मे बी वो उसको पसंद ना हो उस आदमी को. पसंद भी तो करना होता है ना उसको, शायद वो लड़का अच्छा लग गया हो. और दूसरा ये भी रीजन हो सकता है कि उसने जो है वो जाहिर है उसने उसके साथ दूसरे तरीके से रिवेंज लिया, अपनी मर्दानगी भी दिखाई कि ये मेरी मर्दानगी है देखो. yeah. तो हो सकता है. Yeah, so that could be. And but I was like, the same guy, he's not somebody who's gonna let go of things. So उसने दोनों के ऊपर revenge लिया in two different ways, and both of them were male, right? So but the revenges were taken differently. Both are. But on a lighter note, I really like that scene where Rabia's mom, she kind of like swells, gets teary-eyed and all because the dad has appreciated her. कड़ी So पकोड़े में हाँ, वो बहुत ही मुझे टचिंग पसंद है सीन कड़ी था. पकोड़े. मुझे बड़े पसंद है कड़ी पकोड़े और चावल. राइट, बट वो ओहो, बोलती है ना कि साथ में पूरा अचार. जिंदगी मैंने चूल्हे के सामने जला दी, ओनली टू हियर दिस फ्यू वर्ड्स लाइक थैंक यू जस्ट अ फॉर दिस. क्वेश्चन यार, कितना मैटर करता है औरतों को कि अगर उनका हस्बैंड या स्पाउस उनके खाने की तारीफ करे जो बनाती हो. खाने की नहीं, it's more like, appreciating what she's doing, at home. So one of this is of course cooking for him and making sure that उसके पसंद की चीज बने, right? So the fact अप्रिसिएशन चाहिए फिर. just appreciation, even if it's as simple as, especially women who are always at home and taking care of home, 100, like Sana was saying the other day, like 100%, you're a house maker, right? So tumhara, that is your goal of life, that is what you're doing. Imagine if you never get appreciated at your work. तुम्हें पसंद आएगा क्या काम करना उस अपने job पे? Similarly here, this is your job, this is your work, and you need appreciation for little things you do. मेरे ख्याल में पता है वजह क्या है सनी क्योंकि इस ड्रामे के जितने एक्टर्स हैं, मतलब आप जब देखें, जो मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ कि आप सलीम मिराज को देख लें, आप नातिया अफगान को देख लें, आप नुमान मसूद को देख लें, ये सारे मंझे हुए एक्टर्स हैं, पुराने एक्टर्स हैं, और इनके छोटे मोटे सीन के अंदर भी ऐसी जान डाल देते हैं कि मतलब क्या कमाल सीन होता है. मतलब इट्स जस्ट अ स्मॉल जेस्चर सीन के ही इज गोइंग आउट एंड ही इज बीइंग वेरी नेचुरल एट इट एंड ही इज टेलिंग हर कि यार कड़ी पकोड़े का दिल भी चाह रहा था मेरा और अच्छा है, एंड शी इज सो हैप्पी व्हेन शी कम्स बैक. Right. या वो सीन हो, है ना, या वो सीन हो कि वो शुरू में जो उसकी शहर की माँ उससे काम करा रही होती है कजन से, तो वो भी बड़े नेचुरली तरीके से कि अच्छा ये बाल्टी ऊपर रख दो और कपड़े. तो एक्टिंग वाइज जो है और कास्ट वाइज तो ये ड्रामा बड़ा जबरदस्त है. लेकिन अब यही देखना है हमें कि ये स्टोरी किस चीज के बारे में है, जो हुआ ड्रामे में. क्योंकि जैसे अभी क्योंकि जस्ट टू एजुकेट और जस्ट टू गिव अ लिटिल बिट नॉलेज टू आवर लिसनर्स के, ये ड्रामा जो है ये मॉब लिंचिंग की सीरीज में तीसरा ड्रामा है, जो एक सीरीज उन्होंने स्टार्ट किया हम टीवी और सुल्ताना सिद्दीकी साहब ने.
तो उसमें पहला वाला था वो भी मॉब लिंचिंग पे था, बट उसमें एक अलग सिनेरियो दिखाया था कि किस तरह से एक पॉलिटिशियन और एक मौलवी मिल के जो है वो गलत निकाह करा देते हैं। तो जिसमें जो है वो हलाला का कॉन्सेप्ट था। दूसरे वाले में जो है वो जो अभी खत्म हुआ नादान, उसमें एक मौलवी और हॉस्पिटल का था कि पीर फकीरी और हॉस्पिटल के बीच की एक लड़ाई थी। तो आई डोंट नो, मे बी इसके अंदर जो मैसेज है शायद वो इस पे है, मेल मोलेस्टेशन के ऊपर है कि लड़कों के साथ। हो जी सकता है, like हो सकता है she is going to make this a social media like ओह like a propaganda नहीं बोलूंगी, protest बोल शायद, and then हाँ, सोशल मीडिया पे डालेगी। शायद हाँ and then वहां से लेके उसके ऊपर शायद अटैक होंगे, my guess. ओके ओके But ओके। वैसे भी 7-8 मतलब 9 या 8 किस्तों का ड्रामा होने वाला है, तो जो होगा जल्दी जल्दी होगा। right, yeah. So really looking forward to it. So for the acting, the most important thing for a drama is that you start liking the leads and you start sympathizing with them, and they have nailed it. The two main leads have nailed it, right? Shuja, I must say, like, usually, male actors are not good dancers, but in Shuja's case, he was very good. यार देखा तो हमने वो वहाज ने कैसा खतरनाक डांस किया है सुन मेरे दिल में कोई उसकी ना, मैंने उसका डांस देखा, उसकी नीचे वाली टांगे तो हिल ही नहीं रही हैं और चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और टांगे ऐसे सुप करके रख रहा है। सनी देओल जैसे डांस करता था ना एक जमाने में, यार यार, तो वो ऐसा He's डांस कर रहा है। he was completely out of sync in a lot of ways, but यस the only two people I have really liked in Pakistani dramas who danced and looked good were Aisan Khan and Bilal Abbas Khan. These two really. you should watch Shahroz Sabzwari as well। भैरव सब्जारी Acha, का बेटा, okay. वो भी I बड़ा अच्छा haven't seen डांस कर him. लेता I है। haven't seen him at बल्कि all. एक और है सरप्राइज आपके लिए, ये जो नादान ड्रामा गुजरा है ना, उसमें वो थे हम्माद सिद्दीकी, जो दूसरा जो Okay. डॉक्टर ताबीर के साथ जो दूसरे थे, जो Right. पॉलिटिशियन का बेटा होता है, हॉस्पिटल जिसका होता है, वो तो आए ही ऐसे है। उसकी कोई डांसिंग वीडियो वायरल हुई थी, शादी में डांस कर रहा था, तो उसको फिर Acha. उन्होंने ड्रामा में ले लिया। Oh, okay. Interesting. हाँ, वो आए वैसे, मतलब उसका क्लेम टू फेम हुआ है। Yeah, Anyway, I was actually cringing with the opening scene कि like यार अगर वो नाच नहीं पाएगा ना तो ये पूरा flat जाएगा. But no, he did pull it off so well. Even when he was practicing in his room, that was also very well done. यार मेरे ख्याल में ना सारा गेम डायरेक्टर का है। डायरेक्टर जो है ना, हर एक्टर से अच्छी एक्टिंग ले। शुजा असद हमें दूसरे ड्रामों में, हम ऐश के जूनों हमने देखा था, हमें मजा नहीं आ रहा था उसको देखने में कि किस तरह की एक्टिंग कर रहा है, बट इस ड्रामे में देखिए, इमोशंस ऑन पॉइंट, डायलॉग डिलीवरी ऑन पॉइंट, डांस मूव्स ऑन पॉइंट। तो ये मेरे ख्याल से सैफी हसन क्योंकि डायरेक्शन है, वो तो मजे हुए डायरेक्टर है। जट पत्तों का बंद भी उन्होंने किया था, तो Right. मेरे ख्याल से बहुत क्रेडिट जाता है। और फिर सैफी हसन और मुस्ताफ आफरीदी की जो एक जोड़ी बन गई है, ये भी बड़ा बड़ा जबरदस्त है। Yes, the story will not be heavy. हाँ, ऐवी नहीं something होगी, ऐवी नहीं हाँ होगी। कुछ तो सोशल crux टैबू है ना, होगा. तो हाँ, Yeah. जो जोड़ेगा। और ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। आई वुड रियली होप कि इसके बाद भी इस तरह की सीरीज आती रहे। Yeah, my fingers crossed. कि this is how it should be. And we see that initiative, Nadeem Beg का जो series था अभी गुफ्तगू करके, very short episodes, तीन episodes थे, but such beautiful social messages, in all three of them. I'm really looking forward to this, this transition in the Pakistani industry that, कि हमें relevant stories दिखेंगे in a shorter format. एक टीवी चैनल को छोड़कर, एक प्रोडक्शन हाउस को, सेवन स्काई, अब्दुल्ला कादवानी को छोड़ के, बाकी सब ठीक ठाक काम कर ही रहे हैं। हाँ, mix and match करके they're putting up good stuff. अच्छा कर And रहे हैं, अच्छा। एक मुझे पूछनी थी फराज आपसे. Now that we see this, right? Do you think the industry is also changing and they're trying to highlight male issues more now? We are seeing so many dramas in the recent past which are looking at male issues brought to the screen by males themselves. Do you see that? Do you see a change, like a new direction that the industry is moving?
यार देखो, मैं आज से नहीं, मैं बहुत सालों से जो है ना इस चीज का एडवोकेट रहा हूँ कि अगर आप मेल सेंट्रिक स्टोरीज बनाएंगे ना, तो मर्दों की जो कहानी है उससे आप एक लार्जर सेक्शन ऑफ ऑडियंस को भी कवर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में मसले मसाइल है या जो भी है, क्योंकि बड़े अरसे से औरतों वुमेन सेंट्रिक स्टोरीज ही बनाई गई हैं। राइट। और पाकिस्तानी मूवीज भी इसलिए इतनी खास चल नहीं सकी कि वो वुमेन सेंट्रिक, जैसे एक ड्रामा मूवी थी वरना, माहिरा खान की फ्लॉप हो गई, वो भी वुमेन सेंट्रिक थी। तो ठीक है, वुमेन सेंट्रिक कंटेंट आप बनाएं, बट आप, मैं आपको सर्वे से भी बता सकता हूँ कि वो ड्रामे जिसके अंदर जो मेल सेंट्रिक स्टोरीज हैं, जैसे बशर मोमिन गुजरा था, वो मेल सेंट्रिक था, या मेरे पास तुम हो जो मेल सेंट्रिक था, मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से था। और अभी हालिया ड्रामे और भी आए जो मेल सेंट्रिक है या मर्दों पे फोकस रख के वो चलते हैं। और ये आप बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी कि शायद अब शिफ्ट आ रहा है इस तरफ कि दे वांट टू डू मोर मेल सेंट्रिक स्टोरीज। सो मैन कैन विल बॉन्ड, कभी मैं कभी तुम जो है वो हमारे सामने प्राइम एग्जाम्पल यस, यस, है एग्जैक्टली। ना? कि लोग भले कहते रहें कि यार ये शर्जीना इस ड्रामे की हीरो है, फहद मुस्तफा ये कह दे, फरहत इश्तियाक ये कह दे, बट एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि इस ड्रामे का असल हीरो तो मुस्तफा ही था। ऑफ कोर्स। क्योंकि शर्जीना ने तो उसके कैरेक्टर को सपोर्ट किया है, वो शुरू से जो थी वो वही रही, लेकिन उसने मुस्तफा की जिंदगी का आर्क बदला। तो राइट। इट वाज मोर लाइक कमिंग ऑफ एन एज फॉर मुस्तफा, इसीलिए मर्दों को भी ये ड्रामा इतना अट्रैक्ट किया था। तो यू आर राइट ऑन पॉइंट यार, कि हाँ ये अब आ रही है इस तरह की स्टोरीज, एंड आई रियली होप दैट दे शो मोर ऑफ इट, दे Yes, शो and मोर ऑफ दिस like इशू। we saw Bismil, which is trying to यस, have a dialogue on second marriage, right? It's always been looked in a woman-centric way, right, and looked down upon in a woman-centric way. ये भी कर रहा है, but still हाँ, we do see that if you look at the comments in the social media, the population is divided in their opinion. Okay, yep, why not? And when it's allowed by the society, when it's allowed by religion, if a man does something like this, why is he going to look down upon? So this is again a male perspective का एक idea है और issue है. Similarly, male infertility के ऊपर हम जफा जफा, देख रहे हैं. So I am like really happy that and this is no longer a woman being tortured because of the male issues going on. It's a male who's confronting this issue in the drama and saying कि ये है मेरे साथ problem, and they're vocalizing the problem themselves. So I'm loving this shift. If it's a shift, I'm loving it. होपफुली। एंड जनरली जब इस तरह का शिफ्ट आता है ना, तो काफी अरसे तक चलता है, क्योंकि वो उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, स्टोरियां लिखी जाती हैं, कहानियां लिखी जाती हैं, और एक ओवरऑल, जैसा मैंने तो ड्रामे देखना छोड़ दिए थे, क्योंकि आई वाज रियली टायर्ड ऑफ द सेम स्टोरीज, वही Right. कहानी बार बार, वही कहानी बार बार। बट नाउ आई हैव स्टार्टेड वाचिंग पाकिस्तानी ड्रामाज अगेन। तो आई रियली, अब जैसे अब थोड़े दिनों में वो भी आ जाएगा, जो बचे हैं संग समेट लो। इट्स गोइंग टू बी अ नेटफ्लिक्स शो, फरहत इश्तियाक ने लिखा है, और उसमें बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं। आहद रजा मीर हैं उसमें उसमें आपकी हानिया आमिर हैं, उसमें मेरे ख्याल से हाँ फवाद भी हैं उसमें, मारिया भी हैं। तो आई रियली होप कि, बल्कि अभी जो आप कह रही थी ना, एक शायद आई डोंट नो इस पॉडकास्ट में, इससे पहले वाली में, कि एक इंडियन ड्रामा आ रहा है कोई, जिसको लोग कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी स्टाइल में बनाया गया है। तो द शिफ्ट इज गोइंग देयर, वो Yes. उधर जा रहा है। तो आई Right. होप सो, आई होप इट हैपेंस एंड द स्टोरीज गो गुड। बहरहाल, तो सो कमिंग बैक टू तन्मय नीनो नील, मुझे अच्छा लगा। एक तो जो मैंने पहले ही जिक्र किया कि मुझे मजा इस बात पर आया था कि यार वो जिस तरह से बात कर रही है, लाइक्स, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, तो वो तो मुझे दिल को छू गई बात। खैर हमारे साथ भी ये होता है। और उसके अलावा एक्टर्स एक से बढ़कर एक एक्टर है भाई, तो मैं तो देखूंगा इसको। मेरी, अगर मैं अपनी रेटिंग देना चाहूँ, तो मेरी रेटिंग इस ड्रामे की पहले एपिसोड को लेके 7 होगी, 7। सो आई गिव इट अ 7। Yeah, for me, I'm really excited to see how the story will unfold, and I'm really liking the lead pair. So it's an 8.5 for me. जबरदस्त। और इसी तबसरे के साथ, इसी पॉडकास्ट के साथ, ये आप सबको बताना चाहेंगे कि सना हैड टू रश समवेयर। सो सना इज नॉट हियर राइट नाउ, बट शी इज विद अस इन स्पिरिट्स। तो सना
मेरे ख्याल से सना ने देखा नहीं, लेकिन देखा होता तो आज वो बड़े मूड में थी, तो वो भी 8.5 दे देती इस ड्रामे को, Of जस्ट course. बिकॉज ऑफ द फैक्ट, वो कमेंट्स की वजह से, जो वो परेशान Yes. रहती है ना कि मेरे कमेंट्स नहीं आ रहे। And the conversation between the two leads, na, जो बहुत funny था. I think she would have loved उड़े it. उड़े And then her asking him, why aren't you on social media? And he's like, I don't like it. And she's like, तभी तो तुम यहाँ नाच रहे हो. हाँ, उसमें And डायलॉग he goes like, तुम्हारी हाल भी कुछ अच्छा नहीं है. That was a funny dialogue ना, कि तभी तुम That was नाच रहे हो इधर super. के सोशल मीडिया पे नहीं हो तो। हाँ, तुम्हारे भी खाने के लाले ही लग रहे हैं मुझे. Like the guy says her also. अच्छा, मजे की बात में ना एक चीज मुझे जो बड़ी अच्छी लगी वो ये कि हर मदर इज सपोर्टिंग हर इन दिस सोशल Yes. मीडिया एडवेंचर. Yes. ऐसा नहीं है कि वो कह रही है क्या हरकतें करती फिर रही हो. सो दैट वाज फनी. That was good, yeah. वो जिस तरह से वो इक्विपमेंट के ऊपर लाइट लगाती, कैमरा लगाती, अगर मतलब जो लोग हमारा पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनको पता है, हम लोग वीडियो रिव्यूज में भी आएंगे आगे जाके, तो ये हम बातें अक्सर आपस में करते हैं कि यार तुमने ये इक्विपमेंट ले लिया, ये लाइट्स ले ली, तुमने ये ले लिया. तो व्हेन आई सॉ दैट सीन मुझे था कि यार ये तो मुझे भी लेना चाहिए क्योंकि लाइट अच्छी पड़ती है. Remember we were talking about I it was yesterday. actually looking at that round light that or holder or whatever it was. अरे ये हाँ, क्या है? यही है, पुराने यही जमाने आजकल में चला हुआ दिखते है. थे. नहीं, ये चला हुआ अच्छा. आजकल. यू पुट योर फोन इन मिडिल, ये कंटेंट क्रिएटर्स यूज करते हैं. यू पुट द फोन इन मिडिल, यू टर्न ऑन द लाइट, और उसके अंदर शायद एक वो भी होता है, रिमोट भी होता है, सो यू कैन पॉज द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड स्टफ ब्लूटूथ से ही, समथिंग लाइक दैट. सो सना ने आपको कहा था ये लेके आए आप, सो लाइट आपके मुंह पे पड़ेगी. सो व्हेन विल डू वीडियो रिकॉर्डिंग्स विल हैव समथिंग लाइक दैट. Yes, so this is very, very relatable for us, this particular Yes, very drama. relatable for us. Very relatable for all of us. चलो Anyway, then. चलो हो गया, गुड हो गया. तो बस मेरे ख्याल से रैप अप करें सनी पर. हाँ जी. So that's a wrap from Drama Log today. We are really excited about this new show. Hopefully you liked our episode as well and you would like to tune in to watch the show too. So we'll meet you again with a new review. Till then, bye-bye. Bye everyone.